Kindly turn your Bibles with me to the book of Hebrews chapter 10 verse 25. मेरे साथ में अपनी बाइबल में निकालिए इब्रानियों अध्याय 10 वचन 25। Not staying away from our worship meetings as some habitually do, but encouraging each other, and all the more as you see the day drawing near. और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों-त्यों और भी अधिक ये किया करो। इस तरह से कहता है। One of the reasons why we gather together as an assembly in a church is written here in this verse. हम कलीसिया में एक सभा के रूप में जमा होने का एक कारण यहाँ पर इस वचन में लिखा गया है। It says one of the reasons we gather together is to encourage each other more and more as the day of the coming of the Lord Jesus Christ is drawing near. ये कहता है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह के आगमन का वो दिन करीब आ रहा है, त्यों-त्यों हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। A church that has forgotten to declare the coming of the Lord Jesus Christ is not a church at all. जो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की वापसी के बारे में नहीं बताती है, वो तो सच में कलीसिया नहीं है। One of the principal reasons why the Lord appointed the church in this world is to declare that he is coming back again, and we have to be prepared and ready to meet him. प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर कलीसिया को इसलिए रखा, इसका पहला कारण है कि हम इस बात की घोषणा करें कि प्रभु यीशु वापस आएंगे और हम उसके लिए तैयार हो। Two groups of people दो समूह के लोग हैं face the coming of the Lord Jesus Christ. जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन का सामना करेंगे। One is the people who live in darkness. एक ऐसे लोग हैं जो अंधकार में रहेंगे। They face the coming of the Lord Jesus Christ as a thief will come in the night. वो प्रभु यीशु के आगमन का ऐसे सामना करेंगे जैसे कि चोर रात के समय आता है। But the children of God don't face the coming of the Lord Jesus Christ as if they will face a thief who comes to rob in the night. लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले जो लोग हैं वो उसका सामना ऐसे नहीं करेंगे जैसे कोई चोर रात को आता है। That is why in 1 Thessalonians chapter 5 verses 1 to 6 it says. इसीलिए पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 1 से 6 में ये इस तरह से कहता है। We all know that the day of the Lord will come as a thief. कि जैसे रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। But in verse 4 he says. वचन 4 में वो कहता है। But you brothers are not in the dark for this day to overtake you like a thief. पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। ये कहता है भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। For you are all the sons of light and the sons of the day. We do not belong to the night or the darkness. क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम रात के नहीं न अंधकार के हैं। When the world will look at the coming of the Lord Jesus Christ with shock and terror, we the children of God don't have to face the coming of the Lord with shock and surprise, but instead we will be there waiting for him to come and take us with him. जब संसार प्रभु यीशु मसीह के आगमन को दहशत और चौंकाने वाली बात के रूप में देखेगा, लेकिन हम ऐसे होंगे जो उसकी राह देखते होंगे कि वो आकर हमें अपने साथ में लेकर जाए। Why?
Because the Lord has already given us signs that will go before the coming of the Lord Jesus Christ. क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहले कौन से चिन्ह होंगे, इसके बारे में परमेश्वर ने हमें पहले से ही बता दिया है. So we don't get surprised at the coming of the Lord Jesus Christ. इसलिए प्रभु यीशु के आगमन से हम आश्चर्यचकित नहीं होंगे. We expect the coming of the Lord Jesus Christ anytime. हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन की अपेक्षा किसी भी समय कर सकते हैं. We are ready and waiting. हम बिल्कुल तैयार हैं, राह देख रहे हैं. And the Bible speaks about different signs that will follow the coming of the Lord Jesus Christ. और बाइबल अलग अलग चिन्हों के बारे में बताती है जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के साथ होंगे. Last time I began with the first sign, which is the sign of Israel. पिछली बार मैंने आपको बताया था ये पहला चिन्ह जो कि इस्राएल का चिन्ह है. In Matthew 24:32, मत्ती अध्याय 24 वचन 32 में हम देख सकते हैं. Jesus said, when you see the fig tree blossom, understand that the Son of Man has come close to the door. यीशु ने कहा, जब तुम अंजीर के पेड़ को देखते हो कि उसकी डाली कोमल हो जाती है और उसके पत्ते निकलने लगते हैं, तो ये जान लो कि प्रभु का जो आगमन है वो तो बिल्कुल निकट है. What is this fig tree? ये अंजीर का पेड़ क्या The है? fig tree is nothing else but the land of Israel. ये अंजीर का पेड़ और कुछ नहीं लेकिन इस्राएल देश है. That you read it in Jeremiah chapter 24. और इसके बारे में आप यिर्मयाह अध्याय 24 में पढ़ सकते हैं. The whole chapter of Jeremiah 24 talks about good figs and bad figs, speaking about the children of Israel, the Jewish people. यिर्मयाह का पूरा अध्याय 24 अच्छे अंजीर और बुरे अंजीर के बारे में बताता है. ये जो अंजीर है ये तो केवल इस्राएली लोगों के बारे में दर्शाने वाला है. If you want more, I will give Hosea chapter 9 and verse 10. अगर और भी वचन चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ होशे अध्याय 9 वचन 10. There the Lord declared, I discovered Israel like grapes in the wilderness. I saw your fathers like the first fruit of the fig tree in its season. वचन 10 कहता है, ये वचन कहता है, मैंने इस्राएल को ऐसे पाया जैसे कोई जंगल में दाग पाए और तुम्हारे पुरखाओं पर ऐसी दृष्टि की जैसे अंजीर के पहले फलों पर दृष्टि की जाती है. So last time I said the first sign of the coming of the Lord Jesus Christ is all about Israel. पिछली बार मैंने आपसे कहा कि प्रभु यीशु के आगमन का जो चिन्ह है वो तो इस्राएल के बारे में है. I said 7 things will happen according to prophecy, that the nation of Israel will start to bud like a fig tree. मैंने कहा कि भविष्यवाणी के अनुसार यहाँ पर ऐसी 7 बातें होगी जिसके कारण इस्राएल एक अंजीर के पेड़ के जैसे फलवंत होगा. The first one, इसमें पहला है, I said the prophecy of the re-establishment of the state of Israel will happen. मैंने कहा था कि इस्राएल देश का फिर से अस्तित्व में आना ये पूरा होगा. Second sign, the regathering of the Jewish people who were scattered through the ends of the earth will be brought back and resettled in the nation of Israel. दूसरा चिन्ह मैंने आपको बताया था कि इस्राएली लोग जो पूरे संसार में तितर बितर हो गए हैं वो वापस लाए जाएंगे और इस्राएल में फिर से बसाए जाएंगे. The third sign was the reoccupation of the city of Jerusalem, from which they were thrown out and they lost their capital for 2000 years. और मैंने कहा था तीसरा चिन्ह यह है कि वो यरूशलेम में वापस आएंगे, उसे अपनी राजधानी बनाएंगे क्योंकि वो वहां से निकाले गए थे और 2000 साल तक बाहर ही रहे. And the fourth sign was the reclamation of the land of Israel from desolation to abundance. और चौथा चिन्ह मैंने आपसे कहा था कि इस्राएल देश फिर से संपन्न होगा, वो विनाश की दशा में से निकलकर फलवंत होगा. The fifth sign, the revival of biblical Hebrew, a language that was forgotten and ceased to be in use for 2000 years, will be brought back again. पांचवा चिन्ह मैंने आपको बताया था कि ये तो इस्राएल की हिब्रू भाषा है जो कि पूरी तरह से मिटा दी गई थी, खत्म हो गई थी. बाइबल की इब्रानी भाषा फिर से लाई जाएगी. The sixth sign I spoke about was the resurgence of the Israeli military, which lost total significance, but it would come back after 2000 years and threaten the world. छठा चिन्ह मैंने आपको ये बताया था कि इस्राएल की जो सेना है वो वापस फिर से गठित हो जाएगी, जो कि अपना महत्व खो चुकी थी, लेकिन वो पूरे संसार के लिए दहशत बनेगी. Number 7, और फिर नंबर 7, a nation that never even existed in the world map for 2000 years will be reinstated and it will become the center of attention and focus for the entire political arena of the world. पूरे संसार के नक्शे में ऐसा देश जो कि 2000 साल तक अस्तित्व में नहीं था वो फिर से अस्तित्व में आएगा और पूरे संसार की राजनीति के लिए वो मुख्य केंद्र हो जाएगा. So last week I was giving you prophecy after prophecy and how it fulfilled.
proclaiming the coming of the Lord Jesus Christ is drawing near. पिछले हफ्ते मैंने आपको भविष्यवाणियों पर भविष्यवाणी बताया और ये कैसे साबित करते हैं कि प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है। Jesus not only spoke about the sign of Israel, the reblossoming of the fig tree. यीशु ने केवल इस्राएल के चिन्ह के बारे में नहीं कहा जहां पर इस्राएल को फिर से अंजीर के पेड़ के जैसे फलवंत होना There's है। a second sign we are going to handle today. आज हम इसमें से दूसरे चिन्ह को देखने वाले हैं। The second sign that Jesus mentioned regarding his second coming is signs you can identify in nature. यहाँ पर दूसरा चिन्ह जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आगमन के बारे में बताया वो तो ऐसे चिन्ह हैं जिसे आप प्रकृति में होते हुए देख सकते हैं। In Luke chapter 21 and verse 11, लूका अध्याय 21 वचन 11 में हम इस तरह से देखते हैं। Jesus said, यीशु ने कहा there will be violent earthquakes and famines and plagues in various places, and there will be terrifying sights and great signs from heaven. यीशु ने कहा और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। In verse 25, वचन 25 में हम देख सकते हैं he also spoke about how the earth will be bewildered by the roaring sea and the waves. प्रभु ने कहा कि कैसे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से पृथ्वी घबरा जाएगी। So if I want to list the 5 different signs in nature, अगर मैं प्रकृति के 5 अलग-अलग चिन्हों की सूची बनाता हूं you can write it down. तो आप लिख लीजिए। The first one is violent earthquakes. तो उसमें सबसे पहला है कि भयानक या बड़ा भूकंप होगा। Number 2, famines. नंबर 2 अकाल पड़ेंगे। Number 3, plagues. नंबर 3 महामारियां होगी। Number 4, terrifying signs in heaven. नंबर 4 आकाश में भयानक ऐसे चिन्ह होंगे। Number 5, roaring sea and the waves. नंबर 5 समुद्र गरजेगा। Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। You see, this is something that we all should start to notice. ये तो ऐसी बात है जिसकी ओर हम सबको ध्यान देना चाहिए। In Psalm 19, David declared, भजन संहिता 19 में दाऊद ये कहता है, the heavens declare the glory of the Lord and the sky proclaims the work of his hands. आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। The nature that God created not only proclaims the glory and the wonder of God, ये प्रकृति जिसे परमेश्वर ने बनाया ये केवल परमेश्वर की महिमा को ही प्रकट नहीं करती है। I want you to understand today that the same nature which declares the glory of God will also declare the return of the Creator to this world to rule it as a judge in the last days. मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही प्रकृति जिसने परमेश्वर की महिमा को प्रकट किया वो अंतिम दिनों में परमेश्वर के आगमन और उसके न्याय के बारे में घोषणा करेगी। In verse 3 and 4 in the same psalm, इसी भजन में वचन 3 और 4 में हम देख सकते हैं, it's so beautiful. ये बहुत ही सुंदर रीति से बताया है। Regarding nature, there is no speech, there are no words, their voice is not heard, their message has gone out to all the earth and their words to the end of the world. न तो कोई बोली है और न कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। इस तरह से ये कहता है। They cannot speak. वो बोल तो नहीं सकते हैं, They don't have words. उनके पास शब्द नहीं है, But their voice and their message will reach to the ends of the earth. लेकिन उनका स्वर और उनका जो संदेश है वो पृथ्वी की छोर तक पहुंच जाएगा। See, this is exactly what happened when Jesus came into this world 2000 years ago. जब यीशु 2000 साल पहले इस संसार में आए तो बिल्कुल इसी तरह से हुआ था। If you read Matthew chapter 2 and verse 2, अगर आप मत्ती अध्याय 2 वचन 2 यहाँ पर पढ़ते हैं, the wise men came to the palace of Herod and told him, where is he who has been born the king of the Jews? For we saw his star in the east and we have come to worship him. ज्योतिषियों ने हेरोदेस के महल में आकर उससे पूछा, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा। When Jesus came into this world, first time as a savior, जब पहली बार यीशु इस संसार में उद्धारक के रूप में आए, and there was a silent star that was burning in the sky for all to see,
proclaiming that the Savior is coming into this world. तब एक शांत तारा था जो कि वहां पर तेजोमय हुआ था और इस बात की घोषणा कर रहा था कि उद्धारक इस संसार में आया है। But Jesus is going to come again, यीशु मसीह फिर से वापस आएंगे, not as a Savior, अब उद्धारक के रूप में नहीं आएंगे, but as a fiery judge. लेकिन आग से भरे हुए न्यायी के रूप में आएंगे। Now there will be no silent stars, और अब कोई शांत तारा नहीं होगा, but there will be a whole new arena of tremendous signs and terrifying happenings like earthquakes and these roaring of the sea, stars falling from heaven, and it will be so terrifying, proclaiming that the judge of all the earth is coming back. लेकिन इस समय ऐसा होगा कि यहाँ पर कोई शांत तारा नहीं होगा, लेकिन भयानक भूकंप होंगे और समुंदर गरजेगा और ये घोषित करेगा कि पृथ्वी का न्याय करने वाला परमेश्वर प्रभु आता है। I tell you, these signs, no matter how much people try, they cannot cover up, they cannot camouflage. मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चाहे लोग कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो इन चिन्हों को कभी किसी भी तरीके से दूर नहीं कर सकते हैं। People can alter their clocks, they can manipulate the news, but they cannot do anything with what nature is shining and showing off in splendor for all to see. लोग अपनी घड़ियों का समय बदल सकते हैं और यहाँ तक कि खबरें भी झूठी दे सकते हैं, लेकिन जो प्रकृति में हो रहा है वो तो प्रताप है कि सब लोग देख सके। It will be in nature for all to see. ये तो प्रकृति में होगा ताकि सभी लोग इसे देख सके। How will this happen? ये सब कुछ कैसे होगा? Matthew 24:8. मत्ती अध्याय 24 वचन 8 हमें इस तरह से बताता है। In the HCSB version, it goes like this. It says, all these events are the beginning of birth pain. एक अनुवाद इस तरह से बताता है, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी, कि ये तो केवल शुरुआत होगी। In Tamil it is written, this is the beginning of pain. तमिल में इस तरह से लिखा है कि ये तो पीड़ाओं का आरंभ होगा, But English is much more clear. लेकिन इंग्लिश में ये बहुत ही स्पष्ट रीति से बताया गया है। What is that? ये क्या है? It is not ordinary pain. ये कोई साधारण पीड़ा नहीं है। It will be like birth pains a woman endures as she delivers a baby. जैसे जच्चा की सी पीड़ा होती है जब स्त्री बच्चे को जन्म देती है, तब पीड़ा जो होती है वैसे। Now, regarding birth pains, there are two signs. जच्चा की पीड़ा के दो चिन्ह होते हैं। Number one, इसमें नंबर 1 the है, pain will be frequent ये दर्द बार बार उठेगा and the pain will become fierce as the delivery nears. यानी ये दर्द बार बार उठेगा और ये तीव्रता से बढ़ता जाएगा, जैसे कि डिलीवरी का यानी बच्चे जन्मने का समय जब करीब आता है तो ये दर्द और भी ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। That is a sign to say the baby is going to be delivered. जब ये दर्द ऐसे बढ़ते चले जाता है तो ये चिन्ह होता है, ये दिखाता है कि अभी बच्चे के जन्म का समय आ चुका है। In the same way, बिल्कुल उसी तरह से Jesus said, just like a woman will endure birth pangs frequently and more fiercely as it draws close, during the coming of the Lord Jesus Christ, the pain that will be exhibited by nature will become more frequent and become more fierce day by day. यीशु ने कहा कि जैसे जच्चा की सी पीड़ा जैसे डिलीवरी का समय होता है वो और भी बढ़ती चली जाती है, वैसे यीशु के आगमन के समय प्रकृति में ये जो पीड़ाएं हैं ये तो और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। This is not only just in the Bible, but today in world news and in research this has been proved. ये केवल बाइबल में नहीं है, लेकिन आज पूरे संसार की खबरों में देखिए, खोज के द्वारा इसे साबित करके बताया गया है। It has been proved that in the last 10 years, every year the increase of natural disasters has gone up by 7.5% every year. ये तो साबित किया गया है अध्ययन के द्वारा कि जितनी भी प्राकृतिक विपदाएं हैं पिछले 10 साल के अंदर ये तो 7.5% की बढ़ोतरी के साथ बढ़ती जा रही है। Every year 7% increase. हर साल इसमें लगभग 7% की वृद्धि होती जा रही है। Just a little data from Oxfam. ये तो बस ऑक्सफैम का एक छोटा सा डेटा है। In the year 1980, they found out 120 natural disasters. सन 1980 में उन्होंने पता लगाया कि 120 प्राकृतिक विपदाएं हुई हैं। But in the year 2006, लेकिन सन 2006 में that increased to 240 a year. ये तो बढ़कर एक साल में 240 विपदाएं हो गई हैं। They say वो इस तरह से कहते हैं, in the start of the 20th century, 20वीं सदी की बिल्कुल शुरुआत में ही
About 8 million people died as a result of natural disasters alone. लगभग 8 मिलियन लोग यानी 80 लाख लोग केवल प्राकृतिक विपदाओं के कारण ही उनकी मृत्यु हो गई। And it is increasing. और ये जो प्राकृतिक विपदाएं हैं ये तो बढ़ती चली जा रही हैं। I think it is very evident in our news today. मैं सोचता हूं कि हमारी खबरों में इसके बारे में हम अटल रूप में देख सकते हैं। Cyclones, typhoons, earthquakes, forest fire used to be once in a while incident. देखा जाए तो भूकंप आना या फिर बवंडर आना या ज्वालामुखी होना या जंगल में आग लग जाना ये तो कभी कभार एक आध बार होने वाली घटना थी। But now very often you are able to see that as a common news almost every week. लेकिन अभी आप लगभग हर हफ्ते इसे एक सामान्य खबर के रूप में देख सकते हैं। And the Lord Jesus Christ was very clear and specific regarding the incidents that are happening today. आज जो घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में विवरण देते समय प्रभु यीशु ने बहुत ही सटीकता से बताया है। Everyone listen to me. सब लोग मुझे गौर से सुनिए। This is no ordinary thing that is happening around us. ये कोई ऐसी साधारण सी बात नहीं है जो हमारे आसपास में हो रही है। I sincerely believe that believers, Christians who lived 200 years ago could never fully understand certain scriptures, certain prophecies in the Bible like we could do in today's day. मैं इस बात को पूरी तरह से मानता हूं कि आज से 2000 साल पहले जो विश्वासी जी रहे थे वो बाइबल की भविष्यवाणियों को उस तरीके से नहीं समझ सकते थे जैसे कि आज हम समझ रहे हैं। I will give you one example. चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। Turn with me to Luke chapter 21. मेरे साथ देखिए लूका अध्याय 21 में And in verse 26. यहाँ पर वचन 26 देखते हैं। There Jesus talks about how signs will be in the heavens and how the waves and all will roar. यहाँ पर यीशु ने बताया कि कैसे आकाश में चिन्ह होंगे, कैसे लहरें होगी। But in verse 26 he said, यहाँ पर वचन 26 में प्रभु ने कहा, he said, people will faint from fear and expectation of the things that are coming on the world because the celestial powers will be shaken. भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। इस तरह से ये वचन हमें बताता है। Now listen. अब गौर से सुनिए। There are two important things there. यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बातें हैं। We read it very fast, but there are two hidden truths there. हमने इसे बहुत जल्दी से पढ़ा है लेकिन यहाँ पर दो गुप्त ऐसी सच्चाई छिपी हुई है। First, it talks about how people will be aware of things, dangers happening not in their locality but in the world. यहाँ पर ये कहता है कि किस तरह से लोग डर जाएंगे और वो भयभीत होंगे अपने स्थानिक जगह के बारे में नहीं लेकिन संसार पर आने वाली इन सारी घटनाओं के बारे में। ये कहता है कि संसार के बारे में उन लोगों को पता चलेगा। This is not possible 200 years ago. 200 साल पहले ये सब कुछ संभव नहीं था। हम इस बात को देख सकते हैं। 200 years ago, news was very local. 200 साल पहले जो खबरें हुआ करती थी वो तो केवल स्थानिक हुआ करती थी। Why? क्यों? There was no TV, there is no satellite, there is no radio, there is no telegraph, there is no email, there is no internet. क्योंकि उन दिनों में ना इंटरनेट था, ना कोई ईमेल था, ना सैटेलाइट था। So anything happens, it happens locally and people know. जो कुछ भी होता था वो स्थानिक रूप में होता था और लोग उसे जानते थे। But Jesus said, यीशु ने कहा, people will come to hear natural disasters that are happening throughout the world. लेकिन यीशु ने कहा कि पूरे संसार में जो प्राकृतिक विपदाएं होगी लोग उन्हें सुन पाएंगे। How? कैसे? Look at today's news. बस आज की खबरों को जरा देख लीजिए। Live news regarding fires, typhoon, cyclone, on the spot they give you live coverage. देखिए ये तो लाइव कवरेज होता है, चाहे तूफान हो या कहीं आग लग गई हो तुरंत लाइव कवरेज आप देख सकते हैं। This was not possible 200 years ago. 200 साल पहले ये संभव नहीं था। These are the last days. ये तो अंतिम दिन है। Number 2. नंबर 2, Look at that verse. इस वचन को देखिए। People will faint from fear of expectation. यानी इन बातों की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा। This is real in today's time. ये तो आज के समय में बिल्कुल सच्ची ऐसी घटना है। How? कैसे? 200 years ago, 200 साल पहले people were aware of an incident only after it landed, after it happened. लोग उस घटना के बारे में केवल उसके बीत जाने पर, हो जाने पर ही जान सकते थे। But today, लेकिन आज you are able to see weather forecast even before you experience it. आप वेदर फोरकास्ट में यानी मौसम का हाल आप जान सकते हैं उसका अनुभव करने के पहले ही। Fan Puel, cyclone is going to land here.
कि बवंडर आने वाला है। Be ready. This is the pathway of the storm. They make people expect things even before it happens. देखिए, सब कुछ होने के पहले ही हम लोगों को उन सारी चीजों के बारे में अपेक्षा करने वाला बनाते हैं और बाद में वो सब उसका अनुभव करते हैं। And people live in fear just by hearing the news and watching images captured from satellites, which was not available 200 years ago. देखिए, लोग सैटेलाइट के द्वारा ली गई उन तस्वीरों को देखकर ही डर जाते हैं। ये सारी बातें 200 साल पहले अस्तित्व में नहीं थी। The prophecies of Jesus are much more real and applicable in the 21st century. 21वीं सदी में यीशु मसीह की जो भविष्यवाणियां हैं, ये तो बहुत ही व्यवहारिक हैं और उपयोगी हैं। This morning I'm going to handle not all the 5 but the first 3 of the terrible natural disasters Jesus said will happen very closely before his coming. यीशु ने कहा कि उसके आगमन के बस थोड़े समय पहले ये 5 प्राकृतिक विपदाएं होगी। इन सभी 5 को तो नहीं देखेंगे, लेकिन आज हम इनमें से केवल 3 विपदाओं को देखेंगे। I want you to listen very carefully. मैं चाहता हूं कि आप बड़े गौर से सुनिए। The first thing Jesus said was, सबसे पहली बात जो यीशु मसीह ने यहाँ पर कही है, before he returns, उसकी वापसी के पहले, close to his return, terrible and great earthquakes will happen. उसके वापसी के पहले यानी उसके वापसी के बहुत ही निकट समय में यहाँ पृथ्वी पर भयानक और बड़े-बड़े भूकंप आएंगे। Earthquakes of a nature the world has never seen before. ऐसे प्राकृतिक भूकंप जिसे संसार ने पहले कभी नहीं देखा है। The Bible details or chronicles about 12 earthquakes in its Bible history. बाइबल के पूरे इतिहास में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 12 भूकंप के बारे में हमें बताया गया है। Some are directly inferred, some are indirectly inferred. कुछ के बारे में स्पष्ट रूप में बताया गया है तो कुछ के बारे में हमें अस्पष्ट रूप में बताया गया है। In fact, the first earthquake is the earthquake that happened on the 3rd day of creation, inferred. और सच में देखा जाए तो पहला जो भूकंप आया था वो तो सृष्टि के 3रे दिन आया था, यहाँ पर हम देख सकते हैं। Many Bible scholars believe the land mass and the sea was divided by a huge earthquake that lifted the land mass out of the waters which covered the earth. बहुत से बुद्धिमान इस तरह से मानते हैं कि जब जल को और जमीन को अलग कर दिया गया था तब समुंदर के बीच में से एक बहुत बड़ा पहाड़ ऐसे उभर कर आया जिससे जमीन अलग हो गई। The earth was covered in water. ये जो पृथ्वी थी ये तो पूरी तरह से पानी से ढकी हुई थी। A huge earthquake brought the entire land mass up so there could be a basin created and oceans were formed. एक बहुत बड़ा भूकंप आया जिसके कारण मानो जमीन ऐसे ऊपर आ गई, जिसके कारण जमीन बनाई गई, भूमि बनाई गई और उसके साथ साथ समुंदर जो है वो भी बनाया गया। You read that inference very much in detail in Psalm 104 verse 5 to 9. भजन संहिता 104 वचन 5 से 9 में आप इस सारी घटना के बारे में विवरण से देख सकते हैं। I don't have time to read it. You can read it at home. इसे पढ़ने के लिए अभी समय नहीं है, आप इसे घर में पढ़िए। The second earthquake mentioned in the Bible is the earthquake that happened during the flood of Noah. दूसरा भूकंप जिसके बारे में बाइबल में बताया गया है ये तो नूह की बाढ़ के समय हुआ था। Genesis chapter 7 and verse 11. उत्पत्ति अध्याय 7 वचन 11 में ये बताता The है, sources of the watery depths were burst open and the floodgates of the sky burst open. उसी दिन गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोके खुल गए। इस तरह से ये वचन बताता है। The third earthquake, और तीसरा जो भूकंप आया था the crossing of the Red Sea. वो लाल समुद्र के पार करने के समय हुआ। We think the wind blew and the waters parted. हम ये सोचते हैं कि बस हवा चली और पानी इस तरह से विभाजित हो गया। But if you read Psalm 77 verse 18, लेकिन अगर आप भजन संहिता 77 वचन 18 पढ़ते हैं तो आप यहाँ पर पाएंगे, David says, before the waters parted, the earth shook and quaked and gave way for the waters. दाऊद ये कहता है कि बवंडर के गरजने का शब्द सुन पड़ा, जगत बिजली से प्रकाशित हुआ, पृथ्वी कांप उठी और हिल गई और इसके कारण ही जो पानी था वो वहां पर विभाजित हो गया था। Fourth earthquake, चौथा भूकंप, Exodus 19 verse 18. निर्गमन अध्याय 19 वचन 18। When Moses went up to Sinai
to receive the commandments from God, जब मूसा परमेश्वर की ओर से आज्ञा पाने के लिए सिनै पर्वत पर गया था, the whole mountain shook violently, the Bible says. बाइबल कहती है कि पूरा पहाड़ वहां पर कांप उठा था। The fifth earthquake inferred in the Bible is the fall of the walls of Jericho, which could never happen otherwise unless there was a violent earthquake that brought the stones tumbling down. पांचवा भूकंप तो यरीहो की शहरपनाह के समय हुआ था। बाइबल कहती है कि वहां पर इतना बड़ा भूकंप हुआ होगा जिसके कारण वो जो शहरपनाह थी पूरी तरह से नीचे ला दी गई, पूरी तरह से वो मोटी शहरपनाह ढा दी गई। नंबर 6 Numbers 16 verses 31 to 33. गिनती अध्याय 16 वचन 31 से लेकर वचन 33 तक। It says, the earth split open against the sons of Korah, swallowed them up, closed again. ये वचन कहता है कि पृथ्वी वहां पर बीच में फट गई और उसने कोरह के पुत्रों को निगल लिया और फिर से वो पृथ्वी बंद हो गई। Earthquake number 7 in the Bible. बाइबल में 7वां भूकंप In 1 Samuel chapter 14 and verse 15. पहला शमूएल अध्याय 14 वचन 15 में There was a massive earthquake that shook the earth when Jonathan went to fight against the Philistines. जब योनातान पलिश्तियों के विरुद्ध में लड़ने के लिए गया तब ये पृथ्वी जो थी इस पर एक भारी बड़ा भूकंप आ गया। 8th earthquake. 8वां भूकंप। This happened ये हुआ in the eyes of Elijah the prophet on Mount Horeb. होरेब पर्वत पर एलिया भविष्यवक्ता की आंखों के सामने। The Bible says after the wind there was an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. बाइबल कहती है कि आंधी के बाद में भूकंप हुआ लेकिन उस भूकंप में परमेश्वर नहीं था। 9th earthquake. 9वां भूकंप। There was a massive earthquake in Jerusalem during the time of King Uzziah. राजा उज्जिया के समय में यरूशलेम में एक बहुत बड़ा भूकंप आया। Zechariah 14:5 talks about that. जकरिया अध्याय 14 वचन 15 इसके बारे में बताता है। The 10th earthquake in the Bible is the earthquake that happened when Jesus died on the cross and the earth was shaken. 10वां भूकंप ये तब हुआ जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे और उस समय भूकंप आया यानी पूरी पृथ्वी जो थी वो हिलाई गई थी। Matthew 27:51 to 54. मत्ती अध्याय 27 वचन 51 से लेकर वचन 54 तक। The 11th earthquake in the Bible is recorded in Matthew 28 verses 1 to 2. मत्ती अध्याय 28 वचन 1 और 2 में यहाँ पर 11वें भूकंप के बारे में बाइबल में बताया गया है। There when Jesus resurrected, the Bible says the earth shook violently. यहाँ जब प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठे तो बाइबल कहती है कि पूरी पृथ्वी पर भूकंप आया। The last record of the earthquake in the Bible is in Acts chapter 16 verses 25 to 26. बाइबल में जो आखिरी यानी 12वां भूकंप बताया गया है वो प्रेरितों के काम अध्याय 16 वचन 25 और 26 में है। This earthquake happened in the prison when Paul and Silas were arrested in Philippi. When they praised God in the night, the earth shook and the bars of the doors were open. यानी ये जो भूकंप है ये तो फिलिपाई के प्रांत में हुआ जब पौलुस और सिलास रात के समय परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। I tell you, dear brothers and sisters, प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे ये कहता हूँ all these earthquakes will be no match for the earthquakes that will happen before the coming of the Lord Jesus Christ. ये सारे जो भूकंप हैं ये तो उस भूकंप की तुलना में कुछ भी नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो उस समय इससे भी बड़ा भूकंप होगा। I want you to listen to me now very carefully. अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे गौर से सुनिए। So many of us don't follow the news very much, हम में से बहुत से लोग खबरों को बहुत ज्यादा नहीं सुनते हैं, including myself. यहाँ तक कि मैं भी ऐसे में से ही हूँ। But as I am preparing weeks over this message, लेकिन जैसे मैं इन संदेशों के लिए पिछले कई हफ्तों से तैयारी कर रहा हूँ and I began to gather facts, I was terrified about the happenings in our world today. और जैसे मैं इन सारे तथ्यों को एक साथ जोड़ने लगा तो मैं आज संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसके कारण डर गया हूँ। I'm going to give you 10 deadliest earthquakes that happened since the year 2001. 2001 से लेकर अब तक के जितने भी भयानक भूकंप आए हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। 10 deadliest earthquakes. ये तो 10 ऐसे भयानक भूकंप हैं। This happened in just the last 19 years. ये तो केवल पिछले 19 सालों में आ चुके हैं इतने भयानक भूकंप। The first one, पहला है in the year 2001, सन 2001 में massive earthquake struck Gujarat. बड़ा भयानक भूकंप गुजरात के राज्य में हुआ। It shook for about 6 seconds.
वहां केवल 6 सेकंड तक कंपन बना था 20,000 people died. और उस 6 सेकंड के कंपन में 20,000 लोग मर गए 1,67,000 people were injured. और 1,67,000 लोग उसमें जख्मी हुए थे 400,000, 4 lakh homes were destroyed in 6 seconds. बस 6 सेकंड में लगभग 4 लाख घर तबाह हो चुके थे Next is Algeria, 2003. और फिर उसके बाद में सन 2003 में अल्जीरिया में भूकंप आया Around 2,600 people died. लगभग 2,600 लोग उसमें मारे All the गए photographs I'm putting up are real photographs. ये सारी तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये तो असली तस्वीरें हैं 10,000 people were injured for a shake that happened for 3 seconds. 3 सेकंड के लिए जो कंपन आया था उसमें 10,000 से भी ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे Next one in 2003, Iran. और फिर उसके बाद में सन 2003 में ईरान में बड़ा भूकंप आया 26,000 people were dead in seconds. बस कुछ ही सेकंड में 26,000 लोग मारे गए 30,000 people seriously injured. और 30,000 लोग गंभीर रीति से जख्मी हुए 2004 December, a mighty earthquake offshore Indonesia. और सन 2004 में दिसंबर महीने में इंडोनेशिया के समुद्री तट में बड़ा भूकंप आया था Few seconds of earthquake, 230,000 people died. ये तो कुछ ही सेकंड का भूकंप था लेकिन 2,30,000 लोग मारे गए That little earthquake brought waves as high as 30 meters. और इस छोटे से भूकंप के कारण 30 मीटर की ऊंची ऐसी बड़ी महाकाय लहरें उठी थी உயரம் எவ்வளவு தெரியுமா 10 மாடி கட்டடத்துக்கு உயரத்துல வருதாம் அலை 10 मंजिल से भी ज्यादा ऊंची लहरें and they say the speed of the waves was as fast as a jet plane. और ऐसे कहा जाता है कि लहरों की जो रफ्तार थी वो तो जेट प्लेन की रफ्तार के जितनी थी Around 17 lakh people lost their homes. और लगभग 17 लाख लोग बेघर हो गए This is not too far, just 2004. ये बहुत पुरानी बात नहीं है केवल 2004 की है 2005 Kashmir. और फिर 2005 में कश्मीर में भूकंप आया Few seconds of earthquake, 87,000 people died. बस कुछ सेकंड का भूकंप था और उसमें 87,000 लोग मारे गए Almost 28 lakh people were displaced. लगभग 28 लाख लोग तितर-बितर हो गए 2008 China. और फिर उसके बाद में सन 2008 में चीन में भूकंप आया In a matter of seconds, 69,000 people died. बस कुछ ही पल में 69,000 लोग मारे गए 18,000 people still missing. 18,000 लोग अभी भी लापता हैं 2010, the most deadly earthquake ever in the last 10 years, which happened in the country of Haiti. इसके बाद में 2010 में सबसे भयानक भूकंप आया इन 10 सालों का सबसे बड़ा भयानक भूकंप हेटी में आया Few seconds, 3,16,000 people perished. बस कुछ ही सेकंड में 3,16,000 लोग नाश हो गए 2010 China again, फिर से 2010 में चीन में भूकंप आया 3,000 people died. और 3,000 लोग इसमें मर गए The latest was in Nepal, 2015. और फिर सन 2015 में हाल ही में नेपाल में बड़ा भूकंप आया था 8,000 people died. और उसमें 8,000 लोग मर गए 80% of World Heritage Sites in Nepal brought to the ground. नेपाल की प्राचीन खूबसूरत जगह में से 80% जगह पूरी तरह से जमींदोस्त हो गई In just these 19 years of the century, almost 15 lakh people lost their lives just by earthquakes. इस सदी के इन शुरू के 19 साल में लगभग 15 लाख लोग केवल भूकंप से ही मर गए Terrible, is it not? ये तो बहुत ही भयानक है ना They say these earthquakes will be terrible than the previous century. और इस तरह से विद्वान हमें बताते हैं कि पिछली सदी में जितने भी भूकंप आए थे उनसे ज्यादा तीव्र इस सदी में भूकंप आएंगे Scientists are telling us 21st century there will be earthquakes so terrible that around 3 million minimum will die. वैज्ञानिक इस तरह से बताते हैं कि इस सदी में इतने भयानक भूकंप आएंगे कि लगभग 30 लाख लोग मर जाएंगे That is double than the last century.
ये तो पिछली सदी में जितने लोग मरे हैं उनकी तुलना में दुगनी संख्या है। I want to show you a small video clip. I just want you to see what an earthquake will look like. मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं ताकि आप समझे कि भूकंप सच में होता क्या है। Because many of us have not endured or gone through an earthquake. क्योंकि हम में से बहुत से लोग ऐसे भूकंप में से होकर नहीं गए हैं। This is an earthquake fairly small in number that happened in Nepal recently. ये तो हाल ही में नेपाल में छोटा सा भूकंप हुआ है। Let's watch that. तो आइए इसे देखते हैं। இதுல போட்டது ஒரு கிராஃபிக்ஸ் எப்படி அந்த பூமிக்கு அடியில அந்த பிளேட் நகர்ந்துச்சுன்னு சொல்லி यहाँ पर हम ग्राफिक्स में आपको ये सब कुछ बता रहे हैं। அவ்வளவுதான் அங்க நிலநடுக்கம் அதோட முடிவை பாருங்க। इसे जरा आप गौर से देखिए। ஒரு சில வினாடிகள் தாங்க। ये तो बस कुछ सेकंड में ही हुआ है। Just a few seconds. ये तो बस कुछ सेकंड में ही हुआ है। This earthquake ये जो भूकंप आए थे took away the lives of about 8,000 people. इसने लगभग 8,000 लोगों की जिंदगी ले ली। This itself is terrifying. ये देखो तो इसी से डर लग जाता है। Think about Haiti, which took away 3.7 lakhs. तो आप हेटी के उस भूकंप के बारे में सोचिए जिसने लगभग 3,70,000 लोगों की जान ले ली थी। Can you imagine that? क्या आप इसके बारे में कल्पना कर सकते हैं? The Bible says, in the last days before I come, you will hear and see terrible earthquakes. बाइबल में यीशु ने ये कहा कि मेरे आगमन के पहले तुम भयानक और बड़े बड़े भूकंप के बारे में सुनोगे। You don't have to go and search and be a theologian to read when the coming of the Lord, how the coming of the Lord will be. Just see nature. It will teach you the coming of the Lord Jesus Christ is coming close. आपको थियोलॉजियन होने की ज़रूरत नहीं, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस जाकर देखिए कि प्रकृति किस तरह से बता रही है कि प्रभु का आगमन इस समय कितना निकट है। The second sign in nature, Jesus said, watch and you will learn. दूसरा चिन्ह जो यीशु ने यहाँ पर प्रकृति में कहा कि उसने कहा कि देखो और तुम सीखोगे, Famine. वो है अकाल। Famine. अकाल। The Bible has so many instances of famines. बाइबल में अकाल की बहुत सी घटनाएं बताई गई हैं। Abraham, Isaac, Jacob went through famines. अब्राहम, इसहाक, याकूब, ये सभी लोग अकाल में से होकर गए हैं। We hear the story of Ruth, Naomi escaping a famine from Bethlehem and comes to Moab.
हम रूत की कहानी में देखते हैं कि नओमी बेतलेहम के उस अकाल से बचकर निकलती है और मोआब में पहुंच जाती है। Elijah, Elisha went through famines. एलिया और एलीशा भी अकाल में से होकर गए हैं। Nehemiah, in his time, famine was there. निहम्याह के समय में भी अकाल पड़ा था। Paul, in his time, had a famine in the Roman Empire. पौलुस के समय वहां पर रोमी साम्राज्य में भी अकाल पड़ा था। But the Lord Jesus Christ said, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा in the last days, famines will come like birth pangs. कि अंतिम दिनों में अकाल तो ऐसे पड़ेंगे जैसे कि मानो जच्चा की सी पीड़ा होती है। It will be frequent and it will be very fierce. और ये बार बार होते रहेंगे और ये बहुत ही भयानक रूप में होते रहेंगे। I want to give a list of the famines that happened since 1900, that is the 20th century. मैं आपको अकाल के बारे में बताना चाहता हूं सन 1900 से लेकर यानी 20वीं सदी से लेकर। These are some of the major famines, not the minor ones. ये बड़े बड़े अकाल हैं, ये तो छोटे छोटे अकाल नहीं हैं। Only few I am going to give for the lack of time. समय की कमी के कारण इन बड़े अकाल में से मैं केवल कुछ के बारे में ही बताऊंगा। The photographs I am putting up are real photographs. ये जो तस्वीरें मैं आपको बता रहा हूं ये असली तस्वीरें हैं। 1907, the famine of China. 1907 में चीन में अकाल पड़ा था। 25 million people dead. इसमें लगभग 25 मिलियन लोग मर गए थे। 25 million. 25 मिलियन लोग, 250 लाख। Russian famine of 1920. 1920 में रशिया में जो अकाल पड़ा था 5 million, 50 lakhs died. उसमें 5 मिलियन यानी 50 लाख लोग मर गए थे। Soviet Union famine of 1932. 1932 में सोवियत यूनियन में जो अकाल पड़ा था 10 million, 1 crore perished in that famine. उस अकाल में 1 करोड़ लोग नाश हो गए। A famine in India in 1943 और 1943 में भारत में जो अकाल पड़ा था called the Bengal famine. जिसे बंगाल अकाल कहते हैं 7 million died. उसमें 70 लाख लोग मर गए। 7 million. 70 लाख लोग उसमें मर गए। 1945 Vietnam hunger and famine. 1945 में वियतनाम में इस तरह का भारी अकाल पड़ा था। 2 million, 20 lakhs perished. इसमें 20 लाख लोग मर गए। The most terrifying is the 1958 Great Chinese famine. सबसे भयानक 1958 का ग्रेट चाइनीज फैमिन यानी चीन में पड़ा हुआ ये महाभयानक अकाल था। All these years, the Chinese government has been declaring that about 3 to 5 lakhs people died in that famine. They did not release the records. इतने साल तक चीनी सरकार ने इसके बारे में कोई रिकॉर्ड्स नहीं बताए गए हैं। वो कहते हैं बस 3 से 5 लाख लोग इसमें मरे होंगे। But very recently, they began to open all their old files. लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने अपनी इन पूरी पुरानी फाइलों को खोलना शुरू किया। Do you know how many people died? क्या आप जानते हैं कि उसमें कितने लोग मरे थे? 45 million. 45 मिलियन यानी 450 लाख लोग। How many? 4.5 करोड़। 4.5 கோடி பேருங்க சாப்பிட வழி இல்லாம செத்து போயிட்டான். நம்ம பக்கத்து நாடு. 4.5 लोग अकाल में मर गए। Many of you would have been born before 1958, which means in your own lifetime, a neighboring country, 4.5 crores of people died of starvation. आप में से बहुत से लोग 1958 के पहले जन्मे यानी आपके जीवन काल में आपके पड़ोसी देश में 4.5 करोड़ लोग अकाल के कारण मर गए थे। I'll give you some recent famines. और चलिए मैं आपको हाल ही में पड़े हुए कुछ अकाल के आंकड़े बताता हूं। 1994 to 1998, 4 years. 1994 से लेकर 1998 तक यानी 4 साल। North Korean famine. यह है उत्तर कोरिया का अकाल। 3 million people died. इसमें 30 लाख लोग मर गए। I'll give one more very recent famine. चलिए हाल ही में पड़े हुए इस अकाल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। 2010 to 2012, that's just about 7 years ago. 2010 से 2012 यानी आज से केवल 7 साल पहले The Somalia famine. सोमालिया का जो अकाल था 3 lakhs people died. इसमें 3 लाख लोग मर गए।
That is our own time right now. यानी ये हमारे समय में, अभी इस समय में हो रहा है। I want you to look at this photograph. चलिए इन तस्वीरों को देखते हैं। This photograph shook the world. इस तस्वीर ने पूरे संसार को हिला दिया। What is that? ये क्या है? Here is this boy. यहाँ पर ये छोटा लड़का है, He does not have food to eat. उसके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, Dead bodies everywhere. हर जगह केवल मृतदेह पड़ी हुई हैं। He goes to the field and eats grass. वो वहां पर खेत में जाकर केवल घास खा रहा है And he is about to die. और वो बिल्कुल मरने पर आ गया था। And behind him is a vulture waiting to eat him when he dies. और उसके पीछे में ये गीदड़ है जो इंतजार कर रहा है कि जब ये लड़का मरेगा तो उसे वो खाएगा। This is 7 years ago. ये तो केवल पिछले 7 साल पहले की बात है। The signs of the coming of the Lord Jesus Christ can be seen just outside our door. प्रभु यीशु मसीह के आगमन के जितने भी चिन्ह हैं वो तो केवल हमारे दरवाजे के बाहर हम देख सकते हैं। Stockholm International Water Institute has stated like this. स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट ने इस तरह से कहा है। They say every day 900 million people go to bed without food. वो कहते हैं कि हर एक दिन 900 मिलियन लोग रात को बिना भोजन के सो जाते हैं। That is today. ये तो आज की गिनती है। They say in today present 2 billion children are malnourished. वो कहते हैं कि आज इस तारीख में 2 अरब से भी ज्यादा बच्चे हैं जिनका कुपोषण हुआ है। They say in today's world hunger kills more people than AIDS, malaria, tuberculosis combined. एड्स, मलेरिया और टीबी को एक साथ जोड़ने से जितने लोग मरे हैं उससे भी ज्यादा तो लोग भूख के कारण मरे हैं। That is close to 5 million children a year. यानी एक साल में 5 मिलियन यानी 50 लाख बच्चे without food. बिना भोजन के। A recent study says हाल ही का अध्ययन इस तरह से बताता है the wars of the past were about oil, diamonds, wealth, treasures. पिछले जमाने में जो युद्ध हुआ करते थे वो तो तेल के लिए या फिर हीरों के लिए या फिर धन संपत्ति के लिए हुआ करते थे। But they say the wars of the future will not be about oil, but the war of the future will be about water. लेकिन वो कहते हैं कि भविष्य में जो युद्ध होंगे वो तेल के लिए नहीं होंगे, लेकिन ये तो पानी के लिए होने वाले युद्ध होंगे। This is becoming real everywhere. अभी हर जगह पर ये बात तो वास्तविक दिखाई दे रही है। Please don't think that water scarcity is a problem in Chennai, in few parts of India. It's a global problem. ये मत सोचिए कि पानी की जो किल्लत है ये केवल चेन्नई में हो रही है या फिर भारत के कुछ ही भागों में, नहीं, ये आज पूरे संसार में हो रही है। They say वो इस तरह से कहते हैं by the year 1990, 1990 का जो समय था उस समय तक around 50% of China's 50,000 rivers have disappeared. चीन की लगभग 50% नदियां यानी लगभग 50,000 नदियां जो हैं वो सूख गई हैं, पूरी तरह से वो खत्म हो चुकी है, पूरी तरह से गायब हो गई हैं। Our neighboring country, Pakistan, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, a country that receives very less rain. ऐसा देश है जहां पर बहुत कम बारिश होती है। There is a recommendation for that country to have an emergency water saving or emergency water reserve for 1,000 days. That country has to have water for 1,000 days as reserve. संसार की ओर से उन्हें सुझाव दिया जाता है कि इस देश को कम से कम 1000 दिन तक उनकी जो पानी की जरूरत है उतना पानी उन्हें रिजर्व करके रखना चाहिए। Do you know how much Pakistan water has as an emergency? आप जानते हैं कि इमरजेंसी के रूप में इस समय पाकिस्तान के पास कितना पानी है? Not for 1,000 days. 1000 दिनों के लिए तो नहीं है, They have for 30 days. उनके पास केवल 30 दिनों तक पानी है। Reserve water, 30 days. बस बचा कर रखा गया पानी 30 दिनों के लिए होगा।
Countries like Australia, especially Queensland, the tremendous drought that spread in the past few years, most of the livestock has been slaughtered because they could not feed it, they could not give it water. ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में, खास करके क्वींसलैंड में, वहां पर जितने भी जानवर थे उनमें से ज्यादातर जानवरों को खिला पिला नहीं सकते थे, इसलिए मार दिया गया। Jesus said, when you see this, you can understand these are the beginnings of sorrows. यीशु ने कहा, जब तुम इन सारी बातों को होते हुए देखो तो जान लो कि ये तो बस केवल पीड़ा की शुरुआत है। These are not signs that happened 100 years ago. They are happening right now and they are becoming worse. ये ऐसे चिन्ह नहीं है जो कि 100 साल पहले हुए थे, लेकिन अभी हो रहे हैं और ये बदतर होते जा रहे हैं। It is becoming worse. ये और भी बुरे और बदतर होते चले जा रहे हैं। The last sign that Jesus said, आखिरी चिन्ह जिसके बारे में यीशु ने कहा है, Luke 21:11, Jesus said, there will be pestilences in various places. लूका अध्याय 21 वचन 11 में यीशु ने कहा कि बहुत सी जगह पर महामारियां फैल जाएगी, यानी बड़ी मरी फैल जाएगी। Pestilence is like a contagious disease that spreads out of control, killing masses and masses and masses. महामारियां तो ऐसी बीमारियां हैं जो एक से दूसरे को होती है और इस तरह से बहुत से लोगों को मार देती हैं। In today's world, it is real. आज के संसार में ऐसी महामारियां वास्तविक हो गई हैं। In spite of all the medical advances, old and new plagues and diseases are tormenting humankind. हालांकि मेडिकल विज्ञान में इतने बड़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पुराने और नए प्लेग जो है, महामारियां हैं, वो तो मनुष्य को सताए जा रही हैं। There is a recent study that says हाल ही में किए गए अध्ययन में इस तरह से पता चला है 20 very popular diseases which were thought to be under control, like tuberculosis, malaria, cholera, they say they have begun to restart again in big numbers in the recent years. कहा जाता है कि हाल ही के कुछ साल में ऐसी 20 बीमारियां जिन्हें पूरी तरह से नियंत्रण के नीचे समझा जाता था, जैसे कि टीबी, कॉलेरा और इस तरह की दूसरी बीमारियां हैं, वो तो अभी हाल ही में फिर से उभर कर बड़ी तादाद में आई हैं। They say in the past few years, 30 new diseases have appeared out of nowhere and they have no drugs to treat them. और ऐसे भी कहा जाता है कि पिछले कुछ साल में 30 ऐसी नई नई बड़ी बीमारियां आई हैं जिसके लिए अब तक कोई भी उपचार नहीं खोजा गया है। I'll give you a small list of how plagues have ravaged humankind from the 20th century alone, not the previous one, just the 20th century, from the 20th century. मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्लेग के द्वारा कैसे लोग मरे हैं, कितने लोग मरे हैं, केवल 20वीं सदी में, उसके पहले वाली सदी के बारे में नहीं। First one is a plague called the modern plague that started in China around the year 1903. 1903 के लगभग मॉडर्न प्लेग के नाम से एक प्लेग या एक मरी जो चीन में शुरू हुई थी, वो तो बहुत फैलती चली गई थी। By the time it was over, 10 million people were killed. और जब तक कि वो खत्म हुई तब तक 10 मिलियन लोग यानी 1 करोड़ लोग मर गए, by that one disease. बस एक बीमारी के कारण। In the year 1918 to 19, just 1 year, there was a spread of a flu called the Spanish flu. 1918 से लेकर 1919 तक यानी केवल एक साल में स्पेनिश फ्लू के कारण बहुत से लोग मारे गए। It infected 500 million people worldwide. उसने 500 मिलियन लोगों पर पूरे संसार में असर डाला। In the end, 50 million people died out of the disease. उस एक प्लेग के कारण 5 करोड़ लोग मर गए। எவ்வளோ? कितने करोड़ लोग? 5 கோடிங்க செத்து போயிட்டாங்க ஒரே வியாதியில ஒரு வருஷத்துக்குள்ள। एक साल में उस एक बीमारी के कारण 5 करोड़ लोग मर गए। 1956 to 58, 1956 से 1958 तक 3 years, यानी इन 3 साल में there is a flu that came in by the name of Asian flu. एक फ्लू आया जिसका नाम था एशियन फ्लू। Started in China, spread to Singapore, Hong Kong and USA. वो चीन से शुरू हुआ, फिर सिंगापुर, हांगकांग और यूएसए में चला गया। In 3 years, 2 million people died of that flu. 3 साल में लगभग 20 लाख लोग उस फ्लू के कारण मरे। 1968,
to 69, 1 year, there was a flu that spread called the Hong Kong flu. 1968 से 1969 तक यानी एक साल में हांगकांग फ्लू फैलता चला गया। In that 1 year, as a result of that disease and infection, 1 million people died. और उसके परिणाम में उस साल में लगभग 10 लाख लोग मर गए। As recent as 2009, there was a spread of swine flu. 2009 में स्वाइन फ्लू आया। Pandri Kaichal. It took away 200,000 lives. इसने लगभग 2 लाख लोगों को मार दिया। As recent as 2014, अभी हाल ही में सन 2014 में in West Africa, there was a pestilence that moved in called the Ebola virus. वेस्ट अफ्रीका में वहां पर एक मरी आई जिसे इबोला वायरस कहते हैं। 11,000 people died. उससे 11,000 लोग मर गए। This is not the distant history. It's all very close to where we live today. ये बहुत पुराना इतिहास नहीं है, ये आज जहां पर हम हैं हमारे आसपास के समय की बात है। We must all have heard about the infection or the plague called the smallpox. हमने स्मॉल पॉक्स की मरी के बारे में सुना होगा। Do you know, in 1977, the World Health Organization declared that they've eradicated the disease. जानते हैं 1977 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरह से घोषित किया कि उन्होंने इस बीमारी को खत्म कर दिया है। But before they eradicated it, or so they claim, 500 million people were dead with the disease. लेकिन इसके पहले कि वो ये दावा करते और उस बीमारी को दूर करते, उस बीमारी के कारण 500 मिलियन लोग मर गए। Yellow fever. फिर है येलो फीवर। They say till today, around 200,000 cases are reported new every year. कहा जाता है कि आज तक हर साल 2000 नई केसेस आती हैं। Newly, pudusa. बिल्कुल नई केसेस। And they say every year, just this one fever is killing 30,000 people per year. और वो कहते हैं इसके कारण हर साल 30,000 लोग मर रहे हैं। Now we all know about tuberculosis, TB. हम सब लोग ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी को जानते हैं। We don't take it very seriously, हम इसे बहुत ही गंभीरता से तो नहीं लेते हैं, but in history they say there is not a greater killer of human beings than TB in world history. लेकिन पूरे संसार के इतिहास में कहा जाता है कि टीबी से जितने लोग मरे, इससे बढ़कर और किसी दूसरी बीमारी से लोग नहीं मरे हैं। They say in the past 200 years, कहा जाता है कि पिछले 200 साल में 1 billion people were dead of TB. 1 बिलियन लोग टीबी के कारण मर गए हैं। எவ்வளவு பேரு? कितने लोग? 100 கோடிங்க. அதாவது நம்முடைய இந்திய மொத்த பாப்புலேஷன் வந்து 130 கோடி. 100 करोड़ लोग। ஒரு நாடே, பெரிய நாடு மொத்தமா அழிஞ்சு அப்படி இருக்குன்னு யோசித்து பாருங்க. உலகம் முழுவதும் 200 வருஷத்துல 100 கோடி பேர் டிபில செத்து போயிட்டானா। पिछले इतने साल में 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस टीबी के कारण मारे गए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज टेलिंग अस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमें बताती है every single second somebody is getting infected in the world of TB. हर एक सेकंड में संसार में कहीं ना कहीं कोई ना कोई टीबी के कारण शिकार होते जा रहा है। As recent as 2012, और हाल ही में सन 2012 में बताया गया है about 1.3 million people died of TB in 1 year. एक साल में 13 लाख लोग टीबी के कारण मरे हैं। 2012 ஒரே வருஷம் 2012ல மாத்திரம் 13 லட்சம் பேர் செத்து போயிருக்காங்க டிபில। 2012 में 13 लाख लोग उसके कारण मरे। And the big one is the AIDS. फिर सबसे बड़ी बीमारी जो आती है वो है एड्स। Until date, about 40 million people have died. आज के इस तारीख तक लगभग 40 मिलियन लोग इसके कारण मरे हैं। Now, the recent one that is topping the charts is heart disease. अभी हाल ही में जो चार्ट में ऊपर आ रहा है वो है हार्ट डिसीज। They say that is the world's biggest killer today. आज कहा जाता है कि ये संसार में सबसे ज्यादा लोगों को मारने वाली बीमारी है। Out of 10 deaths, every 3 people that die out of 10 die of heart disease. 10 लोग जो मरते हैं उनमें से 3 लोग तो दिल की बीमारी के कारण मर रहे हैं।
Just in the year 2012, केवल सन 2012 में 17.5 million people died of heart disease. 1,72,00,000 பேர் வந்து 2012ல இருதய நோயினால செத்து போனாங்களாம். 2.25 करोड़ लोग इसके कारण मर गए हैं. இது நம்ம we don't actually look into all these statistics and we think we are living in a beautiful world. हम इन सारी गिनतियों को नहीं देखते, इन संख्या की और नहीं देखते, और हम सोचते हैं कि हम तो बहुत सुंदर संसार में जी रहे हैं. We think we are in a very comfortable space. हम ये सोचते हैं कि हम बड़े आरामदेह जगह पर रहते हैं. We think we are living in a very modern, technologically sound society. हम ये सोचते हैं कि हम बहुत ही आधुनिक और टेक्नोलॉजी से भरे समाज में रहते हैं. Jesus said in the last days terrors will come. यीशु ने कहा कि अंतिम दिनों में ऐसी भयानक मरियां आएगी. And what he said we see today. और उसने जो कुछ भी कहा था आज हम उसे देख रहे हैं. Some of these things that I showed you or shared with you, with a little understanding we think, how can this be possible? मैंने आपको ऐसी कुछ बातें अभी बताई है, दिखाई है. हमारी छोटी समझ से हम सोचते हैं कि ये सब कुछ कैसे संभव है. When I showed you pictures of how famines came in just a few years ago. और जब मैंने आपको तस्वीरें बताई कि कुछ साल पहले किस तरह के भयानक अकाल पड़े हैं, How is this possible? तो ये सब कुछ कैसे संभव है. We are having big farms, big produce, lot of storage and freezing and all that, big supermarkets. How can people be hungry and how can famine come? और हम ये सोचते हैं हमारे पास में इतने बड़े बड़े खेत हैं, स्टोर हाउस है, स्टोरेज है, फ्रीजर है, सब कुछ है. ये सब कुछ होने के बावजूद भी कैसे अकाल पड़ सकता है. Truly speaking, मैं आपको सच बताता हूं. by today's standards, they say we are producing 30% more food than we did 100 years ago. आज के स्टैंडर्ड में कहा जाता है 100 साल पहले हम जितना अनाज उत्पन्न करते थे उससे 30% ज्यादा अनाज उत्पन्न कर रहे हैं. But they say, in spite of that, लेकिन कहते हैं इसके बावजूद भी there is starvation, hunger, and famine. हर जगह पर भूख है, भूखमरी है और अकाल पड़े हैं. ये सब कुछ अभी भी हो रहे हैं. See, we cannot understand how millions and millions can die with a disease. हम इस बात को नहीं समझ सकते हैं कि कैसे लाखों लोग बीमारी के कारण मर सकते हैं. We have got multi-speciality hospitals. We got the latest medical care. How can it go? How can it possibly get wrong? It cannot be. We are so advanced. We are so knowledgeable. हम इतने एडवांस हो चुके हैं, हमारा ज्ञान इतना बढ़ चुका है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, सब कुछ तकनीक में इतने बढ़ गए हैं. ये सब कुछ कैसे हो सकता है. But this is happening. लेकिन ये सब हो रहा है. In spite of all this. इन सारी बातों के बावजूद भी. You know why? आप जानते हैं क्यों? In spite of man's best wisdom, what Jesus said regarding his return will still ring true. मनुष्य की इतनी बुद्धि के बावजूद भी यीशु ने अपने वापस आने के बारे में जो कुछ भी कहा है वो सारे चिन्ह तो निश्चय ही पूरे होने हैं. That is why the Bible says, you are not in the darkness, but you are the children of the light. और इसलिए बाइबल ये कहती है कि तुम अभी अंधकार में नहीं हो, लेकिन तुम तो ज्योति की संतान हो. Don't walk around like blind people without noticing these things and being ready for the coming of the Lord Jesus Christ. आप अंधे लोगों के जैसे मत चलिए कि जो आप इन सारी बातों को नहीं देख रहे हैं, लेकिन इन सारे चिन्हों को देखकर आप खुद पूरी तरह से तैयार हो जाइए. Today I shared specifically about how the Lord is using nature to give us signs that He's coming back. आज मैंने आपको बताया कि कैसे परमेश्वर प्रकृति का उपयोग कर रहे हैं कि हमें चिन्ह बताएं कि प्रभु यीशु का आगमन निकट है. I am repeating it again. मैं इसे फिर से दोहराता हूं. And Jesus came as a baby 2000 years ago. यीशु मसीह 2000 साल पहले एक बालक के रूप में आए थे. There was a silent star in the sky. तब आसमान में एक शांत तारा था. Many people did not even notice it. बहुत से लोगों ने उसे देखा भी नहीं. It took wise people to identify a star and say, a king is born. उसके लिए बुद्धिमान लोगों की जरूरत पड़ी कि वो तारे को देखकर जाने कि राजा जन्मा है. But in these last days, लेकिन इन अंतिम दिनों में Jesus is not coming as a baby. यीशु बालक के रूप में नहीं आ रहे हैं. He is coming as a judge. वो न्यायी के रूप में आ रहे हैं. Hallelujah. हालेलुया. He is coming to judge the world. वो तो पूरे संसार का न्याय करने के लिए आ रहे हैं. He is coming as a king. वो राजा के रूप में आ रहे हैं. And you will see no silent
signs in the sky. और आप आसमान में ऐसे कोई भी शांत या चुपचाप रहने वाले चिन्हों को नहीं देखेंगे। I was thinking when I was preparing this sermon, जब मैं ये संदेश तैयार कर रहा था तो मैं ये सोच रहा था, for a small chief minister, a prime minister of a country, a president of a nation for 4 years or 5 years, if they are deciding to visit a place, कोई भी मुख्यमंत्री कहिए या किसी भी देश का प्रधानमंत्री कहिए या राष्ट्रपति कहिए, अगर वो किसी भी जगह पर जाने का निर्णय लेते हैं तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो केवल 4-5 साल के लिए होते हैं, imagine the sirens, imagine the preparation, imagine how much of cutouts and placards and billboards declaring his arrival. तो कल्पना कीजिए कि वहाँ पर उसके लिए कितनी तैयारी की जाती है, कितनी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध की जाती है, कितना ट्रैफिक रोका जाता है, उनके आगमन के बारे में कितने बिलबोर्ड्स लगाकर बताया जाता है। A person who is going to be on the seat for just 4 or 5 years. ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि उस जगह पर केवल 4 या 5 सालों के लिए वहाँ पर आए हुए हैं। Imagine the owner of this world and all the worlds and the creator of the universe coming back in power. कल्पना कीजिए कि इस पूरे संसार के सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो इस पूरे संसार के मालिक हैं वो फिर से आ रहे हैं। He is not coming quietly. वो अभी चुपचाप आने वाले नहीं हैं। The world is thinking that this is all global warming, this is human misuse. They are blind of what is happening right before their eyes. लोग इस तरह से सोच रहे हैं संसार में कि ये सब ग्लोबल वार्मिंग है और ये उनकी आंखों के सामने, लेकिन वो उसे समझ नहीं पा रहे हैं। We are the children of the light. लेकिन हम ज्योति की संतान हैं। We are not blind to what is happening around us. हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए हम अंधे नहीं हैं। We know all these things have been foretold 2000 years ago by Jesus Christ himself. हम जानते हैं कि इन सब के बारे में 2000 साल पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं हमें इसके बारे में बताया था। And his promises will never fail. और प्रभु की जो प्रतिज्ञाएं हैं वो कभी ऐसे टलने की नहीं हैं। I want to just read one verse, draw your attention to one verse when you close in prayer. मैं अंत में आपका ध्यान एक वचन की ओर लेकर आना चाहता हूं, फिर हम प्रार्थना करेंगे। Romans chapter 1 verses 19 to 20. रोमियो अध्याय 1 वचन 19 और वचन 20। Since what can be known about God is evident among them because God has showed it to them. इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। वचन 19 इस तरह से कहता है, Verse 20. और फिर वचन 20, For his invisible attributes, that is his eternal power and divine nature, have been clearly seen since the creation of the world, being understood through what he has made. As a result, people have no excuse. उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस तरह से वचन 20 हमें यहाँ पर बताता है। I want to emphasize the last part. मैं इसके अंतिम भाग पर जोर देना चाहता हूँ। As a result, इसके परिणाम में people are without excuse. यहाँ तक कि लोग निरुत्तर हैं। Lord, I don't know that you are coming. I did not realize you are coming. I was not prepared you are coming. No. प्रभु, मैं नहीं जानता था कि आप आ रहे हैं, मैंने नहीं जाना कि आप आ रहे हैं, मैं आपके लिए तैयार नहीं था। नहीं, ये सब बहाने नहीं चलेंगे। Just walk out of your door and look up at the sky. बस अपने दरवाजे से बाहर निकलिए और आसमान की ओर देखिए। Just switch on the news and watch it for 10 minutes. आप खबरें ऑन कीजिए और 10 मिनट तक खबरों को देखिए। You can know Jesus is at the door. तो आप इस बात को जानेंगे कि यीशु द्वार पर ही हैं। Hallelujah. हालेलुया। Jesus said, I am giving you all these signs because I love you and I want you to be with me in heaven. यीशु ने कहा, मैं तुम्हें ये सारे चिन्ह दे रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि तुम सब लोग मेरे साथ में स्वर्ग में रहने वाले हो। The reason why I am speaking all this is not to terrify you. मैं आपको ये सब कुछ इसीलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं आपको डराना चाहता हूँ। I'm speaking because I want us to be cautious मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम सचेत हो जाएं and prepare for the coming of the Lord Jesus और प्रभु Christ. यीशु के आगमन के लिए तैयार हो। Just imagine the love of God. परमेश्वर के प्रेम की कल्पना कीजिए। He covered all these mysteries and truths
to wise people, but revealed it to us who are foolish and ignorant. परमेश्वर ने ये सारी भेद की बातें बुद्धिमान लोगों से छिपा कर रखी हैं, लेकिन हम मूर्खों के ऊपर परमेश्वर ने ये सब कुछ प्रकट कर दिया है, Because He loves us. क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। The time that we have in our hand, हमारे हाथ में अभी जो समय बाकी रह गया है, Lord, I will use it to prepare myself in my time प्रभु जी, to meet you face to face. मैं अपने आप को इस समय तैयार करूंगा इस समय में, ताकि आपसे मैं आमने सामने मुलाकात करने वाला हो जाऊं। How many of you will say, Jesus, prepare me. कितने लोग कहेंगे कि प्रभु यीशु मुझे तैयार कीजिए, I want to be ready. मैं तैयार होना चाहता हूं, I want to be ready. मैं तैयार होना चाहता हूं, Purify me. मुझे शुद्ध कीजिए, Prepare me. मुझे तैयार कीजिए, Make me ready. मुझे तैयार कीजिए। Come, Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह आइए, Maranatha. मारानाथा, Come, Lord Jesus. प्रभु यीशु जल्दी आ। Close your eyes, my brothers and sisters. मेरे भाइयों और बहनों, आइए अपनी आंखें बंद कर लें। எல்லாரும் முழங்கால் படிடுவோம். आइए हम सब लोग अपनी आंखें बंद कर लें। All these signs right before our eyes. ये सारे चिन्ह अभी हमारी आंखों के सामने हैं। Lord, प्रभु जी, prepare me. मुझे तैयार कीजिए, Prepare me. मुझे तैयार कीजिए, Get me ready. मुझे तैयार कीजिए प्रभु। Young people, जवान लोगों, get ready. तैयार हो जाइए। Maybe it is one more opportunity in your life to prepare for the coming of the Lord Jesus Christ. शायद आपके जीवन में एक और मौका है कि आप प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो जाएं। Lord, prepare me. प्रभु जी, मुझे तैयार कीजिए। प्यारे दर्शकों, हम विश्वास करते हैं कि इस आराधना के द्वारा आप आशीषित हुए होंगे। आने वाले दिनों में यदि आप हमारी आराधना सभाओं को देखना चाहें तो आप ACA आवरी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कार्यक्रम के द्वारा जो आशीषें आपने प्राप्त की हैं उन्हें हमारे साथ शेयर करें। अपने अनुभवों को स्पष्ट पता एवं फ़ोन नंबर सहित acaavadi@gmail.com नमक ईमेल एड्रेस में भेजें। अपनी प्रार्थना निवेदनों को हमारे साथ शेयर करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 9380217774 तथा 9382217774। परमेश्वर आपको आशीषित करे।